So, hello friends, let's start a complete phrasal verb list. Actually, as you can see here, there is one of 139 actually. बहुत सारे, there is a huge number of phrasal verbs there. But we will start with the first alphabet and then go sequence. For example, A is the first, and as you can see here, A alphabet के कितने सारे हैं. And you must be wondering ki, I mean, that's so much difficult to know, or how can we learn all these? Actually, they are, we can say, interrelated also. For example, answer. There is two the same phrasal verbs. उनका जो answer for they are same. Slight difference in their meaning is also there. But actually, also you can say, for example, ask का मतलब होता है ना. यहाँ पे जस्ट उन्होंने अबाउट जोड़ दिया है इसके आगे, एंड देन व्हाट यू हैव इज जस्ट स्लाइट डिफरेंस इन इट्स मीनिंग, एंड देन you can use the phrasal verb. Actually, it enhances, actually it shows like you are speaking good English, and that's like a good uh, good quantity of knowledge in your sentence. Let's start. You can download the PDF as well from easypacelearning.com. Just Google it there, and you can get the PDF also. But one thing is important, that is, if आप PDF download कर रहे हो, you are downloading a lot of books also, but make sure that you are just not just reading it. एक बार read कर लिया तो okay आ गया. No, make sure कि मैं इनको आपके सामने इंटरलेट करके दिखाऊंगी, because actually act, as you can see here, there is act word same, and then something on, and then again on, out, and then again out, just a slight difference in its meaning, and then you are good to go to learn phrasal verbs, because इनका meaning थोड़ा similar हो जाता है आपस में. तो यू कैन जस्ट हैव वन फ्रेजल वर्ब, और आप बहुत सारे फ्रेजल वर्ब्स याद कर सकते हो एक जैसे. जैसे एक्ट ऑन याद कर लिया तो ये बाद में खुद ब खुद होते जाएंगे, बिकॉज इनका मीनिंग कुछ ना कुछ सिमिलर होता जाएगा. So let's start with the first one. Actually, I have already made a abide by account for a previous video of mine, but let's just not get into it. Let's just start with the first. I will go with the first alphabet, that is A. Let's start that. You can download the PDF as well. And if आपको नहीं download हो रहा, you are not getting that, just comment and I will give you the link also. Okay. Let's start with the first one. That's abide by. Abide by means accept. Abide by means follow. Like you are accepting anything, you are following a decision or a rule. आप किसी चीज को मान रहे हो, आप किस चीज को मान रहे हो. फॉर एग्जाम्पल, आप ये सेंटेंस नहीं यूज करना चाहते. देयर आर लॉट ऑफ सेंटेंसेस यू कैन यूज हेयर. आप कमेंट करके बता सकते हो आप कौन सा सेंटेंस इस जगह पे इस्तेमाल करोगे. वेरी सिंपल सेंटेंस, नॉट too difficult also. Let's start with the first one, that is abide by. For example, here it's written accept or follow a decision or rule. किसी rule, किसी abide का मतलब ही एक्चुअल में होता है एक्सेप्ट करना या फॉलो करना. जस्ट इन्होंने बाय आ गया, दैट मीन्स यू आर जस्ट यूजिंग अबाइड बाय इन योर सेंटेंस, और आप बोल रहे हो कि मैं इस चीज को अबाइड बाय कर रहा हूँ, यानी मैं इस चीज को एक्सेप्ट, इस चीज को फॉलो कर रहा हूँ, किसी रूल को, किसी डिसीजन को. For example, I have to abide by what the court says. We have to abide by what the court says, or what the court says, what the constitution of our country says. जैसे कुछ बड़े बड़े हेड होते हैं, और वी कैन से हमारे घर का हेड हमें क्या कह रहा है. आई हैव टू अबाइड बाय व्हाट माय फादर सेज. मेरा फादर मुझे क्या कह रहा है, मुझे उस चीज को फॉलो करना, एक्सेप्ट करना. नॉट ओनली कोड, आप इन चीजों को ले रहे हो. जस्ट गो विद simple examples. Now the second one is, I have made a mess, I think. Okay, so let's just go with the second, that is account for. Now what is account for? Just explain करना. That is very simple to know, because आप कुछ explain कर रहे हो तो आप बोल रहे हो कि they had to account for example, here it's written that they had to account for. What they had to account for?
they had to account for all the money that had gone missing. account for की जगह वो explain word use करते थे simple तरीके से, they had to explain all the money that had gone missing, या फिर किसी को आप बोलना चाहते थे कि आपको explain करो, आप बोल रहे हो जस्ट सिंपल कि यू हैव टू एक्सप्लेन मी, आप इस एक्सप्लेन वर्ड की जगह यूज कर सकते हैं अकाउंट फॉर, यू हैव टू अकाउंट फॉर the happenings, you have to account for all the money, you have to uh, you had to account for, or like that. ऐसे सेंटेंसेस जिसमें आप ये कहना चाहते हो सामने वाले इंसान को या खुद कुछ बता रहे हो कि मैं इस चीज को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, यानी दे हैड टू अकाउंट फॉर। ओके, अकाउंट फॉर मीन एक्सप्लेन करना। नाउ कमिंग टू द थर्ड वन, दैट इज एक फॉर। एक का मतलब ही होता है लाइक एक मीनिंग इज लॉन्गिंग करना, किसी के लिए बहुत नीड फील करना, वांट फील करना। यहाँ पे सेम लिखा हुआ वांट समथिंग और समवन अ लॉट, जस्ट एक फॉर। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो आई एम एकिंग फॉर हर, माय पार्टनर्स बीन अवे फॉर अ फोर्टनाइट। तो इतने टाइम से वो नहीं है, तो मैं उसके लिए आई एम एकिंग फॉर हर। तो हियर इज एकिंग फॉर। आप एक फॉर ही नहीं यूज कर सकते हो, यू कैन ऑल्सो चेंज द वर्ब फॉर्म। यहाँ पे एक लिखा है दैट डजंट मीन यू कैन गो विद एक फॉर, आप यहाँ पे उसका फॉर्म भी चेंज कर सकते हो, जस्ट गो विद दैट एंड देन एकिंग फॉर हर। ओके, सो आई एम एकिंग फॉर हर मीन्स आई एम लॉन्गिंग फॉर हर एंड आई एम थिंकिंग अबाउट हर। सो एक फॉर आप उस चीज में यूज करिए जहाँ पे आप want something or someone a lot. Now coming to act on, to take action because of something like information received. किसी information को रिसीव कर लिया आपने, अब आप उस चीज को एक्शन ले रहे हो। फॉर एग्जाम्पल पुलिस यही चीज करती है, पुलिस वे एक्टिंग ऑन अ टिप फ्रॉम इन्फॉर्मर इन कॉट गैंग रेड हैंडेड। मीन्स किसी चीज की उन्होंने इंफॉर्मेशन ले ली, किस चीज की, कि यही कि उन्होंने उस इन्फॉर्मर को रेड हैंडेड पकड़ लिया, सॉरी इन्फॉर्मर से एक इंफॉर्मेशन ले ली, और जो भी गैंग था, जो भी थे द कल्प्रिट्स, उनको रेड हैंडेड पकड़ लिया, मीन्स एक्ट ऑन कर लिया। तो आप यूज कर सकते हो अपने सेंटेंस में, फॉर एग्जाम्पल आई हैव टू एक्ट ऑन द the the things I have to do, or I have to act on that matter, means मुझे उस मैटर पे एक्शन लेना पड़ेगा। ओके, let's just go to the next one, that is again act on. now these mean affect. now act का मतलब आप खुद भी जान लो, देखो ये जो है these are very same because these are also, this is coming with the same act word, so you can go with the act on to take action because of something like information received. Act on means affect also, like medicine only acts on infected tissue, means affect कर रही है। okay, affect करना, ठीक है। then act out, perform something with actions and gestures. the story on stage they acted out, जैसे हम बोलते हैं उन्होंने एक्ट किया था, तो हम जस्ट सिंपल एक्ट वर्ड यूज करते थे, बट यहाँ पे आउट आ गया, तो आप सिंपल एक्ट आउट का मतलब याद रख लो, दैट कि एक्टेड आउट, एक्ट आउट मीन्स एक्शन जेस्चर्स परफॉर्म करके कुछ परफॉर्म करना। फॉर एग्जाम्पल आई एक्टेड आउट एट माई freshers party, at my party in my college, example like that. Now go with act out, express an emotion in your behavior, the same one. एक और एक्ट आउट का मतलब होता है कि मैंने अपने इमोशंस को अपने बिहेवियर के थ्रू एक्सप्रेस किया। फॉर एग्जाम्पल देयर एंगर इज एक्टेड आउट इन देयर एंटी सोशल बिहेवियर, उनका एंगर दिख गया, यानी एक तरह से एक्सप्रेस हो गया उनके एंटी काइंड ऑफ सोशल बिहेवियर से। तो अब यहाँ पे लिख सकते हो एंगर की जगह कोई और इमोशन ले लो, फॉर एग्जाम्पल लव, देयर लव इज एक्टेड आउट इन देयर गुड रिलेशनशिप, उनका रिलेशनशिप अच्छा है इसलिए उनका प्यार दिख रहा है, मीन्स एक्सप्रेसिंग दैट, एक्ट आउट। नाउ एक्ट अप, बिहेव बैडली और स्ट्रेंजली। now this is up, there comes up different। now आप याद रखो कि एक्टिंग अप मीन्स, जैसे हम बोलते हैं एक्टिंग कर रहे हो, एक्ट अप इट्स लाइक बिहेव करना बैडली, स्ट्रेंजली बिहेव करना। so I think I have a virus, my computers
एक्टिंग अप यहाँ पे वही है कि मीन्स वो बैडली और स्ट्रेंजली बिहेव कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कंप्यूटर का एग्जाम्पल, यू कैन गिव एन एग्जाम्पल ऑफ योर फ्रेंड और समवन यू नो. फॉर एग्जाम्पल यू कैन गिव एन एग्जाम्पल ऑफ दैट पर्सन की ही वॉज एक्टिंग अप, आई थिंक ही माइट डजंट लाइक मी एट ऑल. तो वो मुझसे बैडली स्ट्रेंजली बात कर रहा है. देन एक्ट अपॉन, एक्ट अपॉन सेम दो आगे. तो आप लिखना टू टेक एक्शन बिकॉज ऑफ समथिंग लाइक इंफॉर्मेशन रिसीव्ड. किसी इंफॉर्मेशन रिसीव होने के बाद आप एक्शन ले रहे हो. दिस इज सेम, एक्ट अपॉन एंड एक्ट ऑन. दिस इज वेरी मच सेम, दिस इज वेरी सिमिलर टू दिस. सो जस्ट आप एक चीज याद रखो, एक्ट ऑन एंड एक्ट अपॉन, बिकॉज ये जो वर्ड है, ये जो प्रिपोजिशन लगाए हुए इन्होंने, एक्ट अपॉन एंड एक्ट ऑन, एक्चुअली ऑन अपॉन एक ही मतलब है, तो ऑब्वियसली इनका मतलब सेम आ रहा है, एक्ट ऑन एक्ट अपॉन. तो प्लीज वी आर एक्टिंग अप ऑन अ टिप ऑफ. Act upon, again affect, again act on का, because that meaning is same, on and upon का meaning, that's why the same meaning. The enzymes act up certain proteins, okay, affect करना. Then coming on to next, add on, include in a calculation, यानी कि किसी calculation में include करना. You have to add the VAT on to the price they give. ठीक है, add on यानी उस चीज को आप ऐड करो. फॉर एग्जाम्पल आप बोलना चाहते हो मेरी बिल में इस चीज को इंक्लूड करो, यानी इस प्रोडक्ट को भी इंक्लूड करो, तो आप कह सकते हो प्लीज इंक्लूड की जगह प्लीज ऐड ऑन द प्रोडक्ट इन माई बिलिंग लिस्ट, इन माई बिल लिस्ट, ओके, in my billing charges, or you can say like that. So that's add on. Now add up, to make a mathematical total. We added up the bill to check it was correct. एक मैथमेटिकल टोटल मेक करता है, तो आप बोलते हो ऐड करना. दिस इज वेरी सिंपल हियर. एड अप का मतलब है टू मेक ए मैथमेटिकल टोटल. फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं ऐड कर दो, इन चीजों को ऐड कर दो, इसको 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 इसको. वी एडेड अप द बिल टू चेक इट, हमने ऐड अप किया, यानी उस बिल के हर चीज को ऐड अप किया टू गेट दैट मैथमेटिकल टोटल. नाउ इट्स वेरी सिंपल. ऐड के ये आगे देख रहे हो, add on, add up, same. Be a satisfactory explanation for something. Explained why the work wasn't ready, but her story doesn't add up. अब add up का मतलब यहाँ पे एक आता है कि एक satisfactory, एक satisfy करने वाला explanation देना किसी भी चीज के लिए. यहाँ पे है कि उसने एक्सप्लेन किया अपना वर्क क्यों नहीं उसने किया, बट उसने जो स्टोरी उसके पीछे बताई वो हमें एडअप नहीं की, यानी कि वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगी. आप इसकी जगह यूज कर सकते हो आई एक्सप्लेन्ड या आई टोल्ड देम व्हाई आई वाज लेट बट माई स्टोरी डिडंट एड अप. मीन्स मेरी स्टोरी जो मैंने उनको सुनाई वो एडअप नहीं की, यानी वो उनके लिए सेटिस्फैक्ट्री नहीं बनी. Add up to have a certain result. Trains delay are getting worse, and with high fares, it all adds up to misery for the commuters. Have a certain result. अब ये वही कह रहा है कि adds up to means ये चीज add on हो रही है क्योंकि ट्रेन डिले हो रही है, क्योंकि हाई फेयर है, तो ये चीज, ये दोनों चीज मिला के एड अप टू, यानी वो एड अप हो रही है मिजरी फॉर द कम्यूटर्स. अब जो ट्रैवल करने वाले लोग हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह ऑफिस के लिए जाते हैं सुबह शाम, उनके लिए ये चीज बहुत प्रॉब्लम वाली बन गई. एड अप टू, कम टू ए सर्टेन अमाउंट ऑफ फिगर, किसी अमाउंट किसी फिगर पर आ जाना. ठीक है, द टोटल कॉस्ट एड अप टू सेवरल मिलियन यूरोज. अब आपने वो जो बिलिंग कर ली थी यहाँ पे एड अप कर लिया था, और आप एड अप से एड अप टू हो गए हो कि अब आप बोल रहे हो द टोटल कॉस्ट एड अप टू सेवरल मिलियन यूरोज. अब इतने मिलियन यूरोज से वो एड अप टू हो चुका है, यानी कि वो अब एक उसका जो आउटकम है, उसका जो रिजल्ट है, वो एक सर्टेन अमाउंट, एक फिगर आ चुकी है. नाउ अग्री विद, affect usually used in the negative to show that something has a negative effect, especially if it makes you feel bad. I feel terrible, the food didn't agree with my stomach. यानी अफेक्ट तो हो रहा है बट नेगेटिवली अफेक्ट कोई चीज करे, तो आप कहते हो कि अग्री विद करना, यानी
मैं फील टेरेबल कर रहा था, फूड बिल्कुल भी अग्री विद नहीं कर रहा था मेरे स्टमक के साथ, यानी कि मेरे स्टमक वो सूट नहीं कर रहा था। तो आप ऐसे भी बोल सकते हो, आई फील हॉरेबल, दैट मूवी डिडंट, फूड की जगह मूवी, दैट मूवी डिडंट अग्री विद माई the sense of watching movies, और मैं टेस्ट ऑफ वॉचिंग मूवीज, टेस्ट ऑफ मूवीज को एड एग्री विद नहीं किया। तो इस चीज ने मुझे अफेक्ट वेरी नेगेटिवली किया। एम एट, एम एट का मतलब हो गया टू टारगेट, क्या बोलते, एम, एम का मतलब टारगेट करना। यहाँ पे दूसरा भी एम एट, इंटेंट टू अचीव, अगेन इंटेंट टू अचीव भी हुआ कि टारगेट ही करना, कि आप अचीव करना चाहते हो, टारगेट कि आप टारगेट सेट कर रहे हो, तो दोनों एम एट ही है। तो मैगजीन इज एम्ड एट टीनेजर्स, एम एट आप ऐसे बोलो। अब आप बोलते हो ना कि मैं, यहाँ पे आप सिंपल सेंटेंस में जब लिखते हो तो आप लिखते हो द मैगजीन इज टू टारगेट टीनेजर्स, या बनी हुई है अचीवर्स के, टीनेजर्स के लिए टारगेट करिए टीनेजर्स को। बट उस टारगेट और की जगह अगर आप एम दैट लिख लोगे तो वो थोड़ा डिफरेंट लगेगा, एंड इट विल sound very beautiful. So you just have to be very good in that, and what you have to say in that is कि to target in that you have to say is aimed at, the magazine is aimed at teenagers, यानी वो target करे teenagers को। they're aiming at, again achieve करना means वो target करें, reducing cost by 10%, aiming at। फॉर एग्जाम्पल आप खुद का सेंटेंस बनाओ, आई एम एमिंग एट to qualify the examination, to qualify the upcoming examinations, I'm aiming at to reduce my fat on my body. Okay, then go with allow, allow for, include something in plan or calculation, किसी कैलकुलेशन किसी प्लान में कुछ इंक्लूड करना। यू शुड अलाउ फॉर डिलेज when planning a journey, मतलब अलाउ फॉर, अलाउ का मतलब होता है अलाउ करना, तो आप फॉर यूज करो साथ में, तो मीन्स अलाउ फॉर मीन्स इंक्लूड करो उस चीज को, आप लाओ, ठीक है। अलाउ ऑफ, मेक पॉसिबल, परमिट, परमिशन देना, रूल्स डोंट अलाउ एनी एक्सेप्शंस, वो जो रूल्स बने थे उस चीज ने अलाउ ऑफ नहीं किया, यानी परमिट नहीं किया हमारी उन एक्सेप्शंस को, ठीक है, पॉसिबल नहीं किया। उसके बाद एंगल फॉर, एंगल फॉर का मतलब हुआ ट्राई टू गेट समथिंग इनडायरेक्टली बाय हिंटिंग और सजेस्टिंग, ये थोड़ा डिफरेंट है, आप देख सकते हो। एंगल फॉर, ही हैज बीन एंगलिंग फॉर एन इनविटेशन बट आई डोंट वांट हिम टू कम। एंगलिंग यहाँ पे यूज किया है बिकॉज आई, as I earlier said, you can use here the verb form, you can change here. So for example there it's angling, angle for, angle for means कुछ चीज को ट्राई करना कि वो आपको मिल जाए, इनडायरेक्टली नॉट डायरेक्टली, कुछ सजेस्ट करके कुछ हिंट देके कि वो चीज आपको मिल जाए। तो ये वो सेंटेंस कह रहा है, ही हैज बीन एंगलिंग फॉर उस इनविटेशन के आने के लिए बट मैंने उसको आने को मना कर दिया। और आप अपना सेंटेंस यूज कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल I I was angling for her approval of my proposal, but I but she didn't accepted that, or she doesn't want to have a relationship with me. Yani indirectly मैंने उसे, I asked for that proposal, but she didn't want to get into that. She didn't want to have relationship with me. So that is something related to that. So try to get something indirectly. Now then answer back. There are A के बहुत सारे हैं, B के तो उससे भी ज़्यादा है, then C D E F, you have to make sure कि आप इनमें से ज़्यादा को learn कर पाओ, because that's very important to use in a sentence, and that gets a good way to speak when you're using a phrasal verb. Now here comes answer, answer. Then argue. Okay. Then the answer back. To reply rudely to someone in authority. Mother was shocked and started answering her back. हम कहते हैं ना answer him back, जवाब देना आगे से, तो ये वही है आंसर बैक करना। तो आप आंसर बैक को कह सकते हो सिंपल, द हिंदी वाला की कोई रिप्लाई कर रहा है बट इन अ रूडली वे, इन अ वेरी नॉट इन अ गुड वे। आंसर फॉर,
बी हैव रिस्पॉन्सिबल फॉर अ प्रॉब्लम, आंसर फॉर मीन्स उसको उस चीज का आंसर फॉर करना पड़ेगा, यानी उसको उस चीज के लिए हेल्ड रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा. गवर्नमेंट शुड बी मेड टू आंसर फॉर दे फेलियर टू सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम, यानी आंसर फॉर करना यानी उस चीज को हेल्ड रिस्पॉन्सिबल होना. फॉर एग्जाम्पल आई should be made to, या I should have to answer for all the happenings that had happened in the party. मुझे उस चीज का जवाब देना पड़ेगा, यानी जवाब देना पड़ेगा. तो यहाँ पे आप यूज कर सकते हो आंसर फॉर. देन आंसर फॉर अगेन, स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ समवन फ्रॉम नोइंग देम. अब किसी के बिहाफ में बोलना है तो आप बोल सकते हो आई कैन आंसर फॉर माई पार्टनर बिकॉज आई नो हर पोजिशन ऑन दिस इशू. ओके, तो आप इस चीज में ऑन द बिहाफ बोल रहे हो. ठीक है, आंसर फॉर एक हो गया, रेस्पॉन्सिबल टी ले लेना. दूसरा चीज ऑन द बिहाफ ऑफ स्पीक कर लेना. देन आर्ग्यू डाउन, बीट समवन इन अ डिबेट. Argue down. There are three. Persuade someone to drop the price of something. Try to persuade people not to accept a proposition, motion, etc. एक का मतलब आ गया beat someone, यानी किसी को एक टाइप का खुद जी जाना, उसको हरा देना. दूसरा चीज persuade करना, किसी को मनाना. तीसरा टाइप अगेन persuade वाला ही है. तो ये she argued him down 10%, tried to argue down the proposal. The teacher tried to argue the girl down, but she couldn't. Argue the girl down. Argue the girl down. अब यहाँ पे argue the girl down means that beat करना चाहती थी टीचर in a debate, उसे हराना चाहती थी but वो नहीं हरा पाई. दूसरी चीज she argued him down 10%, यानी कि persuade करना, यानी कि मोटिवेट करना. एक persuade करना कि कुछ एक्सेप्ट करवाना, एक persuade करवाना कि कुछ चीज का प्राइस ड्रॉप करवाना है एंड लाइक दैट. क्योंकि आप यूजुअली किसी को persuade करते हो तो कुछ चीज अपनी मनवाना चाहते हो, लाइक दैट. देन कमिंग टू, ओके दैट्स द लास्ट वन. Okay, then coming to ask for. What is ask for? Inquire about someone's health, how life is going. Ask about, sorry, it's what. Ask how someone is doing, especially professionally and in terms of health. किसी को पूछना है. Asked about my father means कि किसी को in terms of health, as it has been written here, it means कि किसी को पूछ रहे हो आप but उसकी हाल चाल पूछ रहे हो. तो जैसे ask हाल चाल पूछना होता है, तो आपको कोई बोल रहा है कि आप, जैसे आपको किसी का बोलें कि वो आपका हाल चाल पूछ रहा था. So mom, she was asking about my father, she was asking about the health of my father, she was asking about your health. She means asking about, asked about means कि अगेन यहाँ पे वर्ब फॉर्म चेंज हो गया, यहाँ पे पास्ट में आ गया बट द सेम इज कि आस्क अबाउट यूज हो रहा है, फॉर्म कोई भी ले लो. दूसरी चीज ये कि आस्क अबाउट मीन्स उसने हाल चाल पूछा मेरे फादर का. आस्क आफ्टर, inquire about someone else's life is going. Again, Jenny rang earlier and asked after you, so I told her you were fine. Asked after यानी about someone health, किसी की लाइफ कैसी चल रही है उसके बारे में पूछा. मुझसे जेनी ने पूछा और मैंने कहा बिल्कुल ठीक हो. asked after you. Again, asked about, asked after is very same. You can use any of them. Ask a number of people for information of help. Okay, ask around यानी कि ask करना इर्द गिर्द. आप अपने जो एरिया है, आप जहाँ पे भी हो, आप इधर उधर पूछ रहे हो कि कोई आपको हेल्प कर दे. I have no idea but I will ask around at work and see if anyone can help. मीन्स मैं इधर उधर सबसे पूछूंगा. ask around का मतलब ये हुआ. ask around again, invite someone. ठीक है, अब आप कह रहे हो we asked them around for dinner, या I asked them around for the invitation, for the party invitation. Okay, then ask for again, then ask for to provoke a negative reaction. You are asking for trouble. तुम trouble में ask means you are asking for trouble is very I mean famous also. asking for, क्योंकि ask for का मतलब होता है किसी चीज को provoke करना, मतलब तुम इस चीज को instigate कर रहे हो, that's why you are asking for that.
कि ये तुम पे है, तुम इस चीज को इंस्टिगेट कर रहे हो, प्रोवोक कर रहे हो. रिक्वेस्ट टू हैव और बी गिवन. आस्क फॉर, आई आस्क्ड फॉर द मेन्यू मीन्स किस चीज को मंगवाना, किसी चीज को रिक्वेस्ट करवाना. सिंपल आस्क फॉर. आस्क इन, टू इनवाइट समबडी इन. आस्क इन, जैसे आप किसी को बोल रहे हो जॉन्स एट द डोर, आस्क हिम इन, यानी आस्क इन का मतलब है उसे अंदर लाओ. ओके. आस्क आउट, इट्स वेरी, फ्रेजल वर्ब का जो मीनिंग है बहुत बहुत आसान होता है. यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे आस्क है, फिर उसके बाद हिम इन आ गया, आस्क हिम इन. ऐसे आप अगर सेंटेंस में तो आस्क हिम इन, उसे अंदर बुला लो. बट अगर आप इस तरह से इनको लर्न करोगे तो आप बहुत ज्यादा इनको सेंटेंसेस में इस्तेमाल करोगे. आस्क आउट, टू इनवाइट समवन फॉर अ डेट. आई आस्क हर आउट बट वॉज टू शाई. ही वॉन्टेड टू आस्क हर आउट बट वॉज टू शाई. किसी को इनवाइट करना. आस्क ओवर, again invite. They had asked us over for drinks on Friday. Auction off. Okay. Sorry. Ask round. अब round आ गया. Invite someone again. So invite. As I earlier said, you ask का मतलब ही है कि आप ask in, ये जो आप देख रहे हो, I have created a mess here. ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो, this here, this ask in, this ask out, this ask over, this ask round, they have the same meaning of invite. Okay, have they have. Okay, now coming to the last one, that is auction off. Actually ये बिल्कुल अच्छे से लिखे गए हैं according to the sequence of the alphabets. Then coming to the last, that is a u आ गया. ये last वाली हो गया. Auction off means, auction off का मतलब sell something in an auction. ओके, तो ऑक्शन लगा दिया. दे ऑक्शन देयर प्रॉपर्टी. अब ऑफ इस्तेमाल कर लो तो क्या हो जाएगा, तो आप यहाँ से बोलो दे ऑक्शनड ऑफ देयर प्रॉपर्टी एज दे वर हेवीली इन डेट. सो जस्ट auctioned off, you are just changing auction into auction, the verb form is changed but the meaning is same. And you can see in the form की जब आप बोल रहे हो, आप किसी चीज को सेल करवाना चाहते हो, किसी चीज को सेल करवाना चाहते हो. ओके. So if there is any doubt, whatever I have teased you here in the phrasal verb list of A letter, make sure if any problem arises, make sure कि आप नीचे comment करें, and then I will definitely make sure कि उस चीज़ का मैं आपको comment में बता दूँ what is that meaning. And if you want something more to learn, then please comment and subscribe to my channel, The Learning Pen. Thank you.